मान लीजिए आपने स्कैन किया, आपके नेबर में वाईफाई मिल गया और वो अनएन्क्रिप्टेड था और आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे और एक दिन जाके आपने उसको बोला कि आपका जो वाईफाई सिग्नल है वो मैं फ्रीली इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, आप काइंडली उसको ठीक कर लीजिए। क्या ये एथिकल होगा या अनएथिकल होगा? Welcome to the webinar of ethical hacking and cybersecurity. My name is Dhruva and I am working in JIT since 2016. And Jet Institute of Technology is a hardware networking institute and we are providing mainly professional courses. So before starting, I will introduce Chandrali ma'am, Chandrali Bora ma'am, who is working as a system admin in district court, and she is the oldest member of JIT and a personal mentor for me. Welcome, ma'am. Thank you. So, I also want to thank you, Pallavi Borwa ma'am, HOD of Computer Science Department, AIMT College, who is very helpful in this session. Pallavi Borwa join ki bro. Hi, ma'am. Hi, sir. She is with us today. We suppose তেওঁ থাকিব বুলি কৈছিল but এতিয়ালৈ জয়েন কৰা নাই। Yeah. ভালকে চিনাকি। And we also thank to Hirajoti sir, who is assistant professor of KC Das Commerce College, Computer Department. Thank you, sir, for joining. So let's begin with the session with Yakin sir. Sir, over to you, sir. Sir, start. All right. So hi everybody, my name is Yakin and I'm basically an IT security and software consultant based out of Washington. I used to work in Bangalore, Apple earlier. I came back to do something for a couple of audits, and that's the reason why I'm here amongst you guys right now because it's my home. चलिए शुरू करें। जिसने मेरा इंट्रोडक्शन मिस किया, बहुत सिंपल सा है। I'm basically born and brought up in Guwahati. I'm a cybersecurity consultant and a software consultant for many different firms. जिसके लिए मैं काम करता हूँ। I'm CTO for RG Web Services also. So today we're going to discuss about cybersecurity or ethical hacking, जिसको आप कहते हैं। The term that basically we use is not ethical hacking, we call it penetration testing या pen test हम बोलते हैं, ठीक है? So that's basically it. So let's go ahead. सबने ethical hacking के बारे में तो शायद सुना होगा, right? हाँ सर, सुना है। तो कोई मुझे बता सकता है, आप में से कोई भी मुझे इंटरेक्ट करके बता सकता है कि वो क्या है? शॉर्ट में बोलूं तो एथिकल कोर्स होता है जिसपे हम लोगों को सिखाया जाता है कैसे मतलब हैकिंग किया जाता है। ऋषिकेश told me this is टूल्स होता है जिसको यूज करना पड़ता है, जैसे कि फिशिंग वगैरह। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी को पता है कि एग्जैक्टली एक एथिकल हैकर करता क्या होता है, मतलब क्या करना होता है उसको एज अ प्रोफेशनल? चलिए आज हम वो सारी चीजें ही डिस्कस करेंगे। What we will do basically is build the mystery behind ethical hacking and penetration testing. मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली मैं ग्राउंड में क्या करता हूँ ethical hacking as an ethical hacker or as a penetration tester. हम penetration testing वाला शब्द ज्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो सबसे सटीक टर्म है to describe cyber security consultancy, ठीक है? तो चलिए, so what basically penetration testing कहाँ पहले आता है हम ये देखते हैं। See, like you have got corporates, you have got banks, ठीक है? You have got government organizations, सारे के सारे आजकल क्या करते हैं, they are dependent on information technology, है ना? हाँ सर। किसी भी बैंक में जाइए, आप देखेंगे कि सबके सामने एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है। आप corporates में जाइए, everybody is using a laptop. They have big servers and everything. So everybody is connected to one way or the other
their businesses are connected with information technology, चाहे वो अपने मोबाइल डिवाइस के साथ हो या IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए हो या ऐसा कुछ भी हो, they are basically somehow or the other connected. तो जितना ये हम लोग बेसिकली एक सीमलेस कनेक्टिविटी के दौर से गुजर रहे हैं, so we are all connected, interconnected to each other seamlessly. हम इसके बारे में सोचते भी नहीं. अभी जैसे कि I am connected to you guys, the medium being digital technology, right? So ये अभी जो हम कर रहे हैं ना, ये शायद 20 साल पहले एक साइंस फिक्शन था, मानते हैं? हाँ, एक साइंस फिक्शन था, राइट? आप हॉलीवुड मूवीज में ही देखते थे कि लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, बट नाउअडेज nobody gives a hoot about it, everybody is taking it for granted. ये प्रॉब्लम है. ये जो हम टेक्नोलॉजी को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है. क्या होता है कि बहुत सारे लूप होल्स के जरिए, जैसे कि मान लीजिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसने बनाया था, जिसके जरिए आप अभी हम जैसे कि किससे बात कर रहे हैं, हम गूगल के हम एक प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, राइट? मान लीजिए कि इस प्लेटफॉर्म को जिसने बनाया था, ठीक है, उसने कोडिंग में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर दिया था या उसने सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी बातें कोई और सुने. हो सकता है, ठीक है. तो या जिस नेटवर्क के जरिए हम बात कर रहे हैं फिलहाल, वो नेटवर्क में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का प्रॉब्लम वो भी हो सकता है. या मान लीजिए सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको कहीं ना कहीं देयर इज अ लूप या एक होल रह गया है, जिसके जरिए देयर माइट बी a possibility that somebody could attack this particular network that we are speaking, that we are using to communicate with each other right now. ये हो सकता है. And सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो है ह्यूमन एरर्स. अब मान लीजिए आप एक बैंक में जाएंगे तो you will find a teller, you will find a manager and everybody, right? लेकिन उसमें से IT अच्छी तरह से जानना या IT सिक्योरिटी को ख्याल अच्छी तरह से रख के मतलब जो IT सिक्योरिटी का ट्रेनिंग है वो एम्प्लॉइज को नहीं दिया जाता, उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें होने की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो हम जैसे लोगों को हायर करता है ताकि हम चेक कर सकें, हम बाकायदा ऑडिट कर सकें, हम देख सके, सो दैट वी कैन जस्ट गो एंड चेक कि उनका सिस्टम, का नेटवर्क, उनके हार्डवेयर सब सिक्योरिटी जो उनका पॉलिसी है उसके हिसाब से वो एडहियर कर रहा है या नहीं. ठीक है, तो बेसिकली हमारा काम ये होता है, और उसको हम जो करेंगे आज जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको हम करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग. पेनिट्रेशन का मतलब है घुसना, और टेस्टिंग का मतलब है हम सिर्फ टेस्टिंग के हिसाब से घुस रहे हैं, वाकई में चोरी करने के लिए नहीं. द मोटो ऑफ एनी एथिकल हैकर वुड बी टू थिंक लाइक अ थीफ इन ऑर्डर टू कैच अ थीफ. एक चोर की तरह सोचो ताकि चोर को पकड़ सको. एग्जैक्टली, एम आई मेकिंग सेंस नाउ? चलिए, पेन टेस्टिंग क्या है? बेसिकली हम अटेम्प्ट करते हैं नेटवर्क में हैक करने की, उसमें घुसपैठ करने की, वहां पे अगर कोई वीकनेस है जिसको हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं उसको फाइंड करने की. अब इट इज जस्ट लाइक कि हम आपके घर में चोरी करने की कोशिश करेंगे ताकि चोर चोरी ना कर सके. तो हम ये देखेंगे कि कोई दरवाजा ढीला है क्या, कहीं छत से आया जा सकता है क्या, खिड़की खुला हुआ तो नहीं है. दिस एनालॉजी यू कैन डायरेक्टली इंप्लीमेंट इन टर्म्स ऑफ एन IT इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे हम ये देखेंगे कि सर्वर में फायरवॉल सही से काम कर रहा है या नहीं. फॉर एग्जांपल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपडेटेड है या नहीं, उसमें एंटीवायरस जो है वो सही से काम कर रहा है. वो सारी चीजें हम मद्देनजर रखते हैं, और उसके हिसाब से हम फिर भी कोशिश करें. हम देखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता चला जो टारगेट नेटवर्क है वो मान लीजिए विंडोज में चल रहा है. विंडोज पता है सबको? हाँ सर, ऑपरेटिंग सिस्टम. में से किसने लिनक्स का नाम सुना है? सुना है सर, मैं अभी तक नहीं सुना. आप सुना तो आज सुन लीजिए. लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज की तरह. इसके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं. इसको हम इन द फ्यूचर शायद ट्राई करें. ठीक है, वो विंडोज से बहुत ज्यादा सिक्योर है बहुत सारे मामलों, और एथिकल हैकर की जान है. उनमें से एक लिनक्स का वर्जन है काले लिनक्स, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे. वो हम बाद में करेंगे. अभी लेट्स मूव ऑन. सो बेसिकली हम शुरू करेंगे हैकर वर्ड से, जो वर्ड आप सुनते रहते हैं. अच्छा, हैकर सुनने के साथ ही आपके दिमाग में इमीडिएटली क्या आता है?
कोई भी चीज हैक कर सकते हैं ऐसे मैंने। कोई भी चीज हैक कर सकता है, इन व्हाट सेंस? कोई भी चीज मतलब कैसा? मेरा वाटर बॉटल हैक कर लेगा? In good terms. शिवानी was saying. हाँ शिवानी, tell me. कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को जो हैक करते हैं ना इन गुड टर्म्स, अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए? अब मतलब हैकर्स सिर्फ अच्छे होते हैं या बुरे भी होते हैं? सर हैकर्स अच्छे होते हैं, क्रैकर्स खराब होते हैं, बुरे होते हैं। So you are a little informed in this kind of thing. लेकिन हैकर्स भी अलग-अलग टाइप्स के होते हैं, पता है शिवानी आपको? हैकर भी 3 टाइप्स के होते हैं, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट। हाँ, ग्रे हैट है क्या? हाँ ग्रे हैट। ग्रे हैट, हाँ। सो पलाश ज्योति गोस्वामी से ग्रे हैट। कोई का ये व्हाइट ब्लैक हैट और ग्रे हैट के बीच में जो फर्क है वो क्या है? व्हाइट हैट जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो मतलब अच्छे के लिए करता है। तो हम जैसे लोग किस कैटेगरी में आएंगे? हम जैसे लोग अगर हम ग्रे हैट में आएंगे, हम सिर्फ। हाँ, ग्रे हैट में आओगे? नहीं व्हाइट हैट। हाँ चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हैकर जो शब्द है वो कैसे, क्या है बेसिकली हैकर। आप किस बंदे को आप हैकर बोल सकते हैं या किस बंदी को आप हैकर बोल सकते हैं, ठीक है। पहली बात, हैकर एक मेल टर्म है, ठीक है। एनी फीमेल इन द हाउस लाइक शिवानी एंड हु एल्स इज देयर? गिव मी अ चीज। How many females are there in the house today? I think, sir, 2 females are there. 2 females, all right. So we have Pinky and Shivani, I guess. Sir, 2, 4, 5, 6. 5, 6 females are there, sir. 5, 6. Oh my goodness. So we have a substantial number. So I'd like to ask them, female hackers को क्या कहते हैं? मैंने अभी कहा ना कि हैकर एक मेल टर्म है, फीमेल हैकर्स को क्या कहते हैं? फीमेल हैकर्स को क्या कहते हैं? अच्छा, आप में से जिसको बात नहीं करना है वो अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दे। इट्स अ रिक्वेस्ट। कोई गूगल कर रहा है क्या? फीमेल हैकर्स को हैक्सी कहते हैं, HSC के ZE या HSC के SC भी कह सकते हैं, हैक्सी, ठीक है। लेकिन हैकर टर्म बेसिकली है क्या, मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है, आपके पास एक सैमसंग का एंड्रॉइड फोन है, ठीक है। अगर आप उस फोन के बारे में इनसाइड आउट जानते हैं ना, कि वो किस हार्डवेयर पे काम करता है, उसमें फर्मवेयर कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इन एंड आउट अगर आप जानते हैं, तो मैं आपको कह सकता हूं दैट यू आर अ नोकिया हैकर और अ सैमसंग हैकर और एन ओप्पो और एन एप्पल हैकर। हैकर का मतलब है कोई भी टेक्नोलॉजी जिसको इन डेप्थ अगर आप जानते हैं। Suman is saying hacker is a manipulator, but are you sure, Suman? A hacker is a manipulator. Am I manipulating you right now? No, not necessarily. All right. Great to know that I'm not manipulating you. I'm basically a pen tester. I fall under the category of ethical hacking. But then again, हम जा रहे हैं उस टॉपिक पे देखने के लिए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली एथिकल हैकर है कौन। ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने बात किया इसके बारे में, व्हाइट हैट के बारे में, ग्रे हैट के बारे में, ब्लैक हैट के बारे में, वो क्या है। लेकिन पहले हम हैकर्स को जान लेते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप इन डेप्थ जानते हैं, मान लीजिए आप ड्रोन्स के बारे में इन डेप्थ जानते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक फोन है, उस फोन को आप रिवर्स इंजीनियर करके, उसकी इंजीनियरिंग को बदल के आप किसी भी कॉल को आप कनेक्ट कर सकते हैं। आसपास में अगर कोई बात कर रहा है उसकी अगर आप आवाज सुन सकते हैं, फॉर एग्जांपल, I can say that you are basically a Samsung hacker or an Oppo hacker or something like that, ठीक है। So hacker है बेसिकली एक चीज को बहुत इन डेप्थ जानने की कोशिश, उस बंदे को हम हैकर कहते हैं। इस नाम को खराब किसने किया मैं बताता हूँ, मीडिया ने खराब किया। क्योंकि जब कोई पकड़ा जाता है ना, किसी ने चोरी किया है बैंक में, डिजिटली डाका डाला है और या फ्रॉड किया है, फिशिंग किया है, तो अब बेसिकली मीडिया क्या बोलता है, हैकर वाज एप्रीहेंडेड एंड ही वाज गिवन सम जेल। वो ये नहीं बोलता कि ही वाज अ ब्लैक हैट और अ ग्रे हैट और अ व्हाइट हैट। सो बेसिकली
व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट क्या होता है? व्हाइट हैट इज अ गाय हु नोज अबाउट टेक्नोलॉजी, ही इज केपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग इनटू योर सिस्टम, इनटू योर नेटवर्क, बट he will not do that. Instead वो क्या करेगा? He will try to tighten the security around your system by informing you. वो आपको inform करेगा, वो बोलेगा कि basically आपके system में देखिए एक there is a loophole, इसको आप संभाल लीजिए, इसको आप ठीक कर लीजिए. ऐसे बंदे को हम कह सकते हैं white hat. जो उसका पूरा opposite होगा वो है white का opposite क्या है? Black. Exactly. अब जो black hat वाला हैकर है वो भी इन डेप्थ जानता है टेक्नोलॉजी के बारे में, राउटर्स के बारे में, इन डेप्थ एवरीथिंग, वो चीजों को बदल सकता है, टेक्नोलॉजी को बदल सकता है, अपने इस्तेमाल के लिए वो चीजों को क्या कर सकता है, रिवर्स इंजीनियर वगैरह कर सकता है, लेकिन वो करता है बेसिकली अपने फायदे के लिए. Rishikesh is saying so that we can say white hat hackers are the ethical ones. Yes, I'm coming to that, Rishikesh. So black hat hacker basically क्या करेगा? वो काम को ऐसे करेगा जिसको एक पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट के हिसाब से इलीगल या अनएथिकल कहते हैं. लेकिन इसमें एक बात है, जो चीज हमारे कंट्री में लीगल है वो शायद अफगानिस्तान में इलीगल है. मान लीजिए यहाँ पे नेट मीटिंग करना लीगल है, जैसे गूगल करना यहाँ पे लीगल है, राइट? है कि नहीं? लेकिन चाइना में गूगल करना लीगल नहीं है, पता है आपको? उनका अपना सर्च वहां पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेसबुक करना लीगल नहीं है. वर्जन ऑफ फेसबुक वो क्या करते हैं, जैसे कि फेसबुक का उनका अपना वर्जन है, गूगल का उनका अपना वर्जन है, ट्विटर का, व्हाट्सएप का भी उनका अपना वर्जन है. सो दैट्स व्हाइट एंड द ऑपोजिट इज ब्लैक. और कभी कभी एक बंदा होता है ना जो कभी कभी व्हाइट होता है, कभी कभी ब्लैक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जब when you mix white and black आपको क्या मिलेगा? ग्रे. हम उसको बोलेंगे ग्रे हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर एंड ग्रे हैट हैकर. ग्रे हैट हैकर बेसिकली क्या करेगा ना, अब टेलिंग यू व्हाट, मान लीजिए आप में से कोई, अच्छा आप में से किसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? कौन कौन हायर सेकेंडरी कर रहे हैं? Shivani is doing higher secondary, so she will be completing her graduation. So let's take for example, मैं शिवानी का ट्रिप ले गया, ठीक है, बिकॉज उन्होंने अभी बात किया. मान लीजिए शिवानी she likes computers very much, okay? She likes computers so much that वो बाकी, अच्छा शिवानी आप किस में ग्रेजुएशन कर रही है? सर अभी हम जस्ट सेकंड ईयर में गया है. आप गई है किस में? आर्ट्स में, कॉमर्स में? कॉमर्स में. तो मान लीजिए शिवानी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर सिस्टम्स और वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ द डे उनका जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है? Maybe she will not खराब, obviously. But what I'm saying is, says Shivani is so interested in computer systems कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स को इग्नोर करती थी और कंप्यूटर्स के साथ ही लगी रहती थी दिन रात. उसके वजह से क्या हुआ कि बाकी उनके जो फ्रेंड्स थे उनको कैंपस इंटरव्यू मिल गया, जॉब मिल गई, तो नहीं मिला. तो what Shivani will do now is she will think कि अरे मुझे भी तो जॉब चाहिए, because again she has a boyfriend and then you know they have got future plans and everything. So what she would do is like she would recon. वो पहला काम क्या करेगी? स्कैन करेगी. Shivani, you're from Guwahati. Yes sir. Okay, say she randomly scans network, Wi-Fi networks in Guwahati for corporate. जैसे कि Vodafone है हमारे यहाँ पे, Airtel है, you have Jio. So she's scanning those networks, trying to find a loophole. All right? And what she did was उसको एक loophole मिल गया. मान लीजिए Airtel में मिल गया. And what she did? वो Shivani entered their network and encrypted all their data. एक हफ्ते 2 हफ्ते जाने देती है, ठीक है? एंड 1-2 हफ्ते के बाद शिवानी goes with her resume, with her biodata to Airtel, saying कि मुझे एक जॉब चाहिए था, आपके पास अगर कोई वैकेंसी है तो बताइए. तो मैनेजर बोलता है कि बेसिकली आप ग्रेजुएट तो है नहीं, या अगर ग्रेजुएट है भी तो आपके पास पासिंग परसेंटेज बहुत कम है. लेकिन वहां पे लिखा हुआ है, आपने लिखा है कि आप एक एथिकल हैकर हैं, तो
हमारे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, किसी ने 2 हफ्ते पहले घुस के हमारे नेटवर्क सिस्टम को एनक्रिप्ट कर दिया था, सारा का सारा डेटा अनरीडेबल। क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? लेट्स सी, लेकिन अगर मैंने कर लिया तो क्या आप मुझे जॉब देंगे? ऑब्वियसली तो मुझे in front of the computer system, obviously she has the passcode, right? So she ultimately takes back the whole thing to normal, and now because the HR manager he or she promised her, so she gets the job. So how do you like that, Shivani? You just got a job. What she did was she basically hacked into that particular job. ठीक है? और वो टाइम टू टाइम जॉब पाने के बाद भी ना कभी कभी तरक्की भी तो मिलना होगा, तो वो ऐसा काम करती रही। तो ऐसे एक पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ग्रे हैट, क्योंकि वो क्या कर रही है? ब्लैक हैट बन के खराब कर रही है और व्हाइट हैट बन के उसको ठीक कर रही है। सो शी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन बिटवीन। समझ में आया सोफा? एथिकल हैकिंग होता है ना, तो एथिकल का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जो भी आपके स्टेट के हिसाब से या आपके कंट्री के हिसाब से लीगल है, ठीक है, बेसिकली डूइंग हैकिंग इन एथिक्स, या वो एथिक्स क्या है? जो चीज हम लीगली करते हैं उसे एथिकल कहते हैं शायद, और जो अनलीगल होता है उसे जो इलीगल होता है, नहीं वो सिर्फ एक पार्ट आपने कहा। एक्चुअली जो ऋतिक इज सेइंग लीगल, बट व्हाट आई वुड लाइक टू असर्ट, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने जो कहा सही कहा आप लोगों ने, लेकिन जो काम आप करेंगे वो अगर लीगल प्लस मॉरल होगा, MORAL मॉरल, इन दो कोड्स को मिला के एथिक्स बनता है। मानते हैं जो चीज लीगल आपके कंट्री में लीगल और आपके स्टेट रूल के हिसाब से मॉरल भी है, उसको हम ह्यूमैनिटी और मोरल के एस्पेक्ट से हम कहेंगे व्हाट यू हैव डन इज एथिकल। आप अगर किसी के फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने स्कैन किया, आपके नेबर में वाईफाई मिल गया और वो अनएन्क्रिप्टेड था और आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे, और एक दिन जाके आपने उसको बोला कि आपका जो वाईफाई सिग्नल है वो मैं फ्रीली इस्तेमाल कर पा रहा हूं, आप काइंडली उसको ठीक कर लीजिए। क्या ये एथिकल होगा या अनएथिकल होगा? मैंने क्या कहा? सर एथिकल होगा। अच्छा, लेकिन वो बंदा तो भड़क गया, हाँ तुम पिछले 1 हफ्ते से मेरा वाईफाई इस्तेमाल कर रहे थे, किससे पूछ के किया? सर वो चुपके से कर रहा था, बाद में वो कर गया। क्योंकि आपने चुपके से किया, क्योंकि आपने चुपके से किया और उससे परमिशन नहीं लिया, ठीक है। सो इन दैट केस आप उस चीज को एथिकल नहीं कह सकते। एथिकल हैकिंग क्या होता है पता है? अगर किसी कॉर्पोरेशन में हमको बुलाया जाता है ना, एक पता आप अगर हमको उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना है तो हमें उनसे पहले परमिशन लेना पड़ता है। वो लोग हमें बाकायदा लिख के देते हैं, दैट इज कॉल्ड गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड। वो हमको क्या करते हैं? लिख के देते हैं कि आप ये वाला स्कोप के अंदर एक स्कोप होता है कि इसी के अंदर आप ये कंप्यूटर्स को ही आप टेस्ट कर सकते हैं। जब हमको ये परमिशन मिलता है तब हम वो काम करते हैं। मुझे आपके बारे में कुछ पूछना था। देखो कैसे स्टार्ट किया है? या मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ एग्जैक्टली हमने क्या किया। मैं स्कूल से शुरू करता हूँ, ठीक है। आई पास्ड आउट फ्रॉम साउथ पॉइंट स्कूल, ओके, इन द ईयर 1994। उससे हमारे स्कूल में सिस्टम्स हुआ करता था, ठीक है। उस वक्त कंप्यूटर्स कैसे होते थे पता है? उसमें हार्ड डिस्क भी नहीं होता था। कैन यू इमेजिन अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ए हार्ड डिस्क? स्टोर का हो रहा है वो सब? हाँ, स्टोर होता था फ्लॉपी में। ओह, फ्लॉपी डिस्क। हाँ, फ्लॉपी। वो पता है कितना था? 2.44 MB था शायद। हाँ सर, उस सब में डेटा स्टोर होता था। हाँ जी, मेरा क्या सर आपका जमाने में लेटेस्ट वर्जन क्या था वो लैपटॉप जो डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर का? मैं समझा नहीं, क्या बोला सर? वो पूछ रहा है आप कौन सा विंडोज यूज कर रहे थे तब के टाइम में? विंडोज एक्सपी था शायद। नहीं, उससे विस्टा होगा। हमारे जमाने में, अच्छा, हमारे जमाने में, वाह, हमारे जमाने में I'll tell you, हमारे जमाने में विंडोज नहीं होता था। हमारे जमाने में चंद्राली सिंह, वी हैड डॉस डिस्क। हाँ, डॉस।
बट आपके जमाने में भी डॉस है, पता है कि नहीं? जब आप विंडोज में जाके आर में जाके CMD टाइप करते हैं, जो निकलता है वो दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस। और उसके ऊपर नेटवर्क करने के लिए, बिकॉज दैट वाज द स्टैंडअलोन सिस्टम, नेटवर्क करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? नोबल नेटवर्क। नोबल बोल के एक कंपनी था, नोबल नेटवर्क। तो हम तब सी लैंग्वेज सीख रहे थे। सी लैंग्वेज के बारे में पता है सबको? यस सर। हाँ सर, थोड़ा बहुत मैं सीख रहा हूँ सी। आप सी सीख रहे हैं ना? अच्छा, सी में एक चीज होता है TSR बोल। TSR स्टैंड्स फॉर टर्मिनेट एंड स्टे रेसिडेंट प्रोग्राम। ये जो वायरस बनता है ना, कंप्यूटर वायरस जिससे पोर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड TSR प्रोग्रामिंग। अच्छा, कोई मुझे वायरस का फुल फॉर्म बता सकता है? B का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, U का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है? Abhijit Chatterjee is saying vital information. Undersea. Abhijit, you missed R. Viral information resources under seas. Exactly. So anybody who would not know the meaning, आप kindly अपने notepad में लिख लीजिए. It is called vital information resources under sea. seas. So thank you everybody. मैं आज wrap up करता हूँ. Thank you so much for joining in and listening to me. I hope to see you again sometime. Thank you so much.